علم، مطالعے اور کتب دینی کا رجحان بین الاقوامی سطح پر زوال پذیر ہے. یعنی کسی دنیا کا مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں. مغربی دنیا میں بھی سنجیدہ کتابیں بہت کم پڑھی جاتی ہیں. جہاں پڑھنے کا رجحان سب سے زیادہ ہے، جہاں شرح خوانی سب سے زیادہ ہے، جہاں تعلیم سب سے زیادہ عام ہے. لیکن پاکستان میں علم اور کتاب کی صورتحال باقی دنیا کے ملکوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ محدود ہے. اور کتاب سے ہمارا تعلق، مطالعے سے ہمارا تعلق، علم سے ہمارا تعلق اتنا کمزور ہو گیا ہے، کمزور پڑتا چلا جا رہا ہے کہ اس پر جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے. مطلب کتاب سے ہمارے تعلق کی نوعیت یہ ہو گئی ہے کہ ہم 5,000 روپے کا جوتا خریدتے ہیں اور اسے سستا سمجھتے ہیں، لیکن 200 روپے کی کتاب خریدتے ہیں اور اس کو مہنگا سمجھتے ہیں. ہمارے بجٹ میں کسی ستم ظریف نے کہہ رکھا ہے اور بہت اچھا کہہ رکھا ہے کہ نزلہ ہمیشہ عضو ضعیف پر گرتا ہے. تو جب ہمیں اپنے بجٹ میں کہیں کٹوتی کرنی ہوتی ہے تو پہلی چیز جو اس کی ذہن میں آتی ہے وہ یہ کتاب ہوتی ہے یا اخبار ہوتا ہے. میں ایسے بہت لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اخبار بند کر دیتے ہیں، ذرا سی کوئی ان کو پرابلم ہوتی ہے وہ اخبار بند کر دیتے ہیں. مطلب آبادی ہماری 17 کروڑ ہے اور پاکستان میں کل شائع ہونے والے انگریزی، اردو تمام ملا کر، تمام زبانوں کے اخبارات اور رسائل ملا کر ان کی مجموعی اشاعت 25 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے. یعنی 17 کروڑ کی آبادی ہے اور 25 لاکھ کی تعداد میں سارے اخبارات انگریزی، اردو، ہندی، پنجابی سب ملا کر اس سے زیادہ نہیں، 25 لاکھ کی تعداد میں شائع. کتاب کی صورتحال یہ ہے کہ کتاب اچھے مصنفین کی کتاب 1000 کی تعداد میں چھپتی ہے اور 3-4 سال تک فروخت نہیں ہوتی ہے. اس میں سے جس کتابیں عموماً لکھنے والے اپنے ملنے جلنے والوں کو، دوستوں کو، احباب کو دستخط کے ساتھ تحفتاً دے دیتے ہیں. باقی جو 400-500 کتابیں رہ جاتی ہیں وہ 4-5 سال بڑی سڑتی رہتی ہیں، کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے. عمومی صورتحال کی بات ہے. تو یہ تو بہت ہی ہولناک صورتحال ہے. یعنی ہم بہت بڑے گھر بنا رہے ہیں، 1000 گز کے، 2000 گز کے، 5000 گز کے. ہم بہت اچھا کھانا کھا رہے ہیں، 1 اسٹار، 2 اسٹار، 5 اسٹار. ہم بہت اچھا لباس پہن رہے ہیں، اس میں بھی 1 اسٹار، 2 اسٹار، 5 اسٹار تک آپ کہہ سکتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو بہت مہنگے اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں جہاں 4000، 5000، 7000، 8000 دیتے ہیں. لیکن ہمارے گھروں میں، اکثر گھروں میں، یعنی اکثریت کی بات کروں، کتب خانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی. یعنی اکثر گھروں میں کتب خانہ ہوتا ہے. حالانکہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ مسلمانوں کے گھروں کا تصور لائبریری کے بغیر کیا ہی نہیں جا سکتا تھا. یعنی ممکن ہی نہیں تھا کہ کسی مسلمان کا گھر ہوگا اور اس میں کوئی لائبریری نہیں ہوگی. چھوٹی بڑی 200 کتابیں، 50 کتابیں، 500 کتابیں، جس کی جتنی توفیق ہو، جس کا جتنی دلچسپی ہو، جن سے جگہ لگ سکتا. لیکن اب اکثر گھروں میں، ہمارے گھروں میں کتابیں لائبریری ہوتی ہے. یعنی اس کا تصور نہیں رہا کہ لائبریری ہماری تہذیب کا ایک جزو لاجوت تھا جس کے بغیر ہم اپنی تہذیب کو پرسیج نہیں کر سکتے تھے. لیکن اب ہمارے یہاں تصور نہیں کر سکتا. نہ ہمارے گھروں میں لائبریریاں ہوتی ہیں، نہ ہمارے محلوں میں ہیں، نہ ہمارے اسکولوں میں ہیں، نہ ہمارے کالجز میں ہیں، نہ ہماری یونیورسٹیز میں ہیں. ہمارا یہ شہر 2 کروڑ کی آبادی کا یا 2 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے. اور شاید آپ کے لیے اطلاع نہ ہو یہ بات کہ اتنے بڑے شہر میں، 2 کروڑ کی آبادی کے شہر میں ایک لینڈنگ لائبریری نہیں ہے. یعنی یہاں سبھی کچھ ہے، مطلب آپ جس چیز کی بات کریں وہ مل جاتی ہے. اتنے بڑے شہر میں ایک لینڈنگ لائبریری ہے جہاں سے آپ کتاب جاری کرا کے اپنے گھر آئیں اور 8 دن، 10 دن، 15 دن کو اپنے پاس رکھیں، اس کو مطالعہ کریں، پھر لوٹا دیں. دنیا میں کسی شہر میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا. دلی، کلکتہ، بامبے، آپ جس میں نیو یارک یا جاپان کے شہروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں ان ملکوں کی، جنوبی ایشیا کے ملکوں کی، سری لنکا، مالدیپ، کہیں آپ چلے جائیے، ماریشس، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اتنی بڑی آبادی کا کوئی شہر ہوگا اور اس میں ایک ہی لائبریری ہوگی. اور اس کے بغیر شہری مطمئن ہوں گے، خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے، مزے سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے. نہ یہ موضوع کبھی کسی اخبار میں زیر بحث آیا ہوگا، نہ کسی ٹیلی ویژن چینل پر اس پر کبھی ڈسکشن ہوا ہوگا، نہ کسی تحریری فورم پر اس میں کہیں گفتگو ہوئی ہوگی. یہ ہمارا مطلب مزاج ہے کہ کتاب سے، علم سے ہمارا
یہ نوعیت اس وقت اور سنگین ہو جاتی ہے جب ہم اپنی تاریخ کو اور اپنی تہذیب کو ایک پرسپیکٹو میں رکھ کر دیکھتے ہیں. یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں ایمان کے بعد جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، جس چیز پر سب سے زیادہ اصرار کیا گیا ہے، وہ علم ہے. 800 سے زیادہ مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں علم یا اس کے متعلقات پر زور دیا گیا ہے، ترغیب کی گئی ہے. تم پڑھو، سوچو، غور کرو، تفکر سے کام کرو، تدبر سے کام کرو. یہ جگہ جگہ قرآن مجید میں آئے ہیں. اور اس پورے زمین پر حقیقی معنوں میں اگر کوئی تہذیب اپنے آپ کو بک بیسڈ سویلائزیشن کہہ سکتی ہے، کتاب پر مبنی تہذیب کہہ سکتی ہے، تو وہ صرف اور صرف اسلامی تہذیب ہے. اس کی الکتاب تو صرف ہمارے پاس ہے، دنیا کی کسی سویلائزیشن کے پاس الکتاب نہیں ہے. ہمارے پاس الکتاب ہے، قرآن مجید فرقان حمید ہے، جو علم کا کبھی نہ ختم ہونے والا سرچشمہ ہے. یہ ہماری تاریخ میں، ہماری تہذیب میں علم کی اہمیت ہے. اور میں وہ حدیث آپ کو یاد نہیں دلانا چاہتا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو علم کی طرف داخل ہونے کی اور علم کے اصول کی جو ہے ترغیب دی ہے، اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ان کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں، ان سے آپ واقف ہیں. لیکن اور ہم نے جو تہذیب پیدا کی اس میں ہماری علم کی کیا پلیسمنٹ ہے. یعنی دنیا بھر کی شاعری، دنیا بھر میں جتنے بھی شاعر ہیں، وہ 50,000 شاعر ہیں یا 1,00,000 شاعر ہیں، اگر ان کی شاعری کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور مولانا روم کی شاعری کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو صرف مولانا روم کی شاعری دنیا بھر کی شاعری سے زیادہ وزن کی حامل ہوگی. الغزالی کا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے ضرور سنا ہی ہوگا، کبھی نہ کبھی کسی نے کہیں پڑھا ہی ہوگا. امام غزالی کے مناسب کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرمایا اور غزالی وہاں موجود ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تمہاری امتوں میں کوئی غزالی کے پائے کا عالم دین ہے؟ یعنی ایک آدمی کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، پوری تہذیب وہاں پر سوال کی زد میں ہے. پوری جو کرسچن سویلائزیشن ہے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا غزالی کے پائے کا کوئی عالم اس پوری تہذیب نے پیدا کیا؟ اور یہودیوں سے پوچھا جا رہا ہے، بنی اسرائیل سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تمہاری تہذیب میں غزالی جیسا کوئی عالم دین پیدا کیا؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہماری تہذیب میں، ہماری قوموں میں، ہماری امتوں میں غزالی کے پائے کا کوئی عالم نہیں. یعنی مسلمانوں کی تہذیب میں علم کی اہمیت یہ ہے کہ ایک غزالی باقی ملتوں، باقی امتوں کی مجموعی علم سے زیادہ علم رکھنے والا ایک آدمی ہے. یہ صرف ایک غزالی کی بات نہیں ہے، سینکڑوں یا ہزاروں لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. غزالی کے آس پاس علم کے پائے کے لوگ ہیں اور ان کے زمانے میں اور ان کے بعد کے زمانے میں لوگ پیدا ہوئے. اور آپ بہت دور جاتے ہیں، خود جس تحریک سے آپ کا میرا تعلق ہے، تحریک اسلامی سے ہمارا تعلق ہے، وہ کس چیز پر کھڑی ہوئی ہے، کس چیز سے پیدا ہوئی ہے؟ وہ مولانا مودودی کے لٹریچر سے پیدا ہوئی ہے. یعنی مولانا مودودی کے لٹریچر کو اگر آپ ایک طرف، مولانا مودودی کی شخصیت اور مولانا مودودی کے لٹریچر کو ایک طرف رکھ دیں تو جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت علماء کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ہم جو کچھ ہیں، جو ہمارا مطلب علم ہے دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، جو ہم زندگی کے بارے میں جانتے ہیں، جو ہم کائنات کے بارے میں جانتے ہیں، جتنے بھی ہمارے تصورات اور خیالات ہیں، وہ سب کے سب مولانا مودودی کی کتاب سے محفوظ ہے، کتابوں سے محفوظ ہے. ایسا ہی ہے. تو اگر اسلامی تحریک کے اندر بھی ہے ایسی تحریک کہ جو کتاب کی بنیاد پر پیدا ہوئی، کتاب کی بنیاد پر پرمان چڑھی، کتاب کی بنیاد پر مستحکم ہوئی، کتاب کی بنیاد پر زندہ ہے، اگر اس میں لوگ یہ سوال کرنے لگے اور یہ خیال رہا ہونے لگے کہ بھائی یہ باقی معاشرے کی کیا بات آپ کرتے ہیں، اب تو جماعت اسلامی کے اندر لوگ نہیں پڑھتے، اسلامی جمعیت کے اندر لوگ نہیں پڑھتے، تو یہ عام بات ہے. ایس سے بھی میری اس مسئلے میں اکثر بات ہوتی ہے کہ ہاں یہ پڑھتے نہیں ہیں لوگ، بالکل نہیں پڑھتے، اور یہ کہہ کر گزر جاتے ہو، جیسے کہ انہوں نے یہ کہہ کر انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کری، جیسے کہ لوگوں کو پڑھانا اور موبائل
सकता है उसके बारे में हमारे दरमियान बात करने वाला कोई नहीं। यानी ऐसा लगता है कि किताब हमारी जिंदगी की तरजीहात में कहीं आती ही नहीं है। यानी जिंदगी की तरजीहात जो भी पहले आप बनाए 10 लुगात पर मुश्तमिल, 15 लुगात पर मुश्तमिल, 25 लुगात पर मुश्तमिल, उसमें किताब का और इल्म का बहरहाल कहीं जिक्र नहीं होता। कितनी अजीबोगरीब बात, एक ऐसी तहजीब, एक ऐसा मजहब, एक ऐसा दीन, एक ऐसी मिल्लत, एक ऐसी उम्मत, एक ऐसी तहरीक कि जो इल्म की बुनियाद ही पर खड़ी हुई हो, कोई दूसरी बुनियाद ही ना हो उसके पास, इल्म की बुनियाद के सिवा, के तक़वे की बुनियाद के सिवा, वो उसमें भी अगर ना पढ़ा जा रहा हो तो मतलब इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात कोई नहीं होती। और मैं अपने तजर्बे मुशाहिदे की रोशनी में आपको बताता हूँ कि मैं ऐसे लोगों से मिलता रहता हूँ, जमीयत के लोग भी और जमात के लोग भी मिलते हैं, और उनमें से बहुत से लोग शिकायत करते हैं साहब, मैं उनसे पूछता हूँ भाई मौलाना को पढ़ते हो? वो कहते साहब मौलाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल लगता है उनको पढ़ना। मतलब मौलाना के बारे में सारी बातें कही जा सकती है सिवाय इस बात के कि मौलाना ने मुश्किल लिखा है। तो अगर मौलाना का लिखा हो भी हमारे लिए मुश्किल हो गया तो मेरा अंदाजा किया जा सकता है कि हमारी मुश्किल की क्या सजा हो गई। अच्छा, जाहिर है कि अब ये मामला तो पैदा हो चुका, लेकिन इसको थोड़ा सा एनालाइज भी तो करना चाहिए, इसका थोड़ा सा डायसेक्शन भी तो होना चाहिए। यहाँ से हम लोग मतलब अगर पढ़े तो क्यों पढ़े, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे हमें क्या फैज़ पहुँचेगा, इससे हमें शख्सी एतबार से क्या फ़वाइद हासिल होंगे, तहरीक के एतबार से क्या फ़वाइद हासिल होंगे, उम्मत के एतबार से हमें इसके क्या फ़वाइद हासिल होंगे। ये बात तो दुनिया की ज़हन में आनी चाहिए, लेकिन ये जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये ज़हन में ऐसे नहीं। तो आज की नशिस्त में हम थोड़ा सा इस बात का जायजा लेने की कोशिश करेंगे कि इल्म से या किताब से हमारे ताल्लुक़ की बुनियाद हमें क्या फराहम कर सकती है, हमें क्या अता कर सकती है। इंसान की ज़िंदगी के दो बुनियादी सुतून हैं, दो बुनियादी सरचश्मे हैं, यानी मुशाहिदा और तजुर्बा। इंसान मुशाहिदे से सीखता है और तजुर्बे से सीखता है। ये मुबलिग होता है हर इंसान का, इसमें किसी इंसान की कोई खास तखसीस नहीं कि मेरा किसी और चीज़ पर मबनी है, आपका किसी और चीज़ पर मबनी है। एक जनरल बात है, एक अमूमी बात है कि इंसान दो चीज़ों से सीखता है, मुशाहिदे से और तजुर्बे से। और जैसा जिसका मुशाहिदा और जैसा जिसका तजुर्बा होता है वैसा उसका ज़िंदगी के बारे में तसव्वुर होता है, जैसा किसी का ज़िंदगी के बारे में तसव्वुर होता है वैसी उसकी ज़िंदगी होती है। लेकिन हम सब अपने ज़ाती मुशाहिदे, तजुर्बे और इल्म से जानते हैं कि एक इंसान को एक बहुत तवील ज़िंदगी में 60 साल की, 70 साल की ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा तजुर्बात और बहुत ज़्यादा मुशाहिदात फराहम नहीं होती। और अगर होती भी हैं फर्ज कीजिए 50-60 मुशाहिदात या 50-60 तजुर्बात आपको हो भी गए, उनमें से सब चीज़ें याद नहीं रहती हैं। वो चीज़ें याद रहती हैं जो रेलिवेंट होती हैं, वो चीज़ें याद रहती हैं जो हमारे लिए मुफीद होती हैं, वो चीज़ें हमें याद रहती हैं जो इसमें हमारी दिलचस्पी होती है। बाकी चीज़ें होती हैं और हमारे हाथ से स्लिप कर जाती हैं, मना हो जाती हैं। तो जब हम अगर उसको नक्शल में बयान करें कि हम 60 साल की, 70 साल की ज़िंदगी गुजार के अपने तजुर्बे मुशाहिदे की ज़मीन को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमारी ज़मीन में 2-4 मुशाहिदात और 2-4 तजुर्बात के सिवा और कुछ नहीं होता। ये हमारी ज़िंदगी का कुल असासा, कुल सरमाया होता है, और ये बहुत कलीली सरमाया है। इस दुनिया पर इतनी वसी, इतनी हवाया हमारी ज़िंदगी नहीं बदल की जा सकती। चुनांचे किताब से हमारे ताल्लुक़ की बुनियाद, सबसे पहली बुनियाद इस तसव्वुर पर कायम है कि किताब हमें हज़ारों लाखों लोगों के तजुर्बात, मुशाहिदात और उनके इल्म में शिरकत का मौका फराहम करती है। यानी मिसाल के तौर पर अगर मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने वो किताबें न लिखी होती जो कि उन्होंने लिखी है, तो मेरे और आपके पास कोई जरिया नहीं था उनके इल्म से इस्तेफादे का, ठीक है। और मौलाना का जो इल्म था, जो उनका तजुर्बा था, जो उनका मुशाहिदा था, क्या उसकी कोई कीमत हो सकती है? यानी मतलब मौलाना मौदूदी के इल्म की क्या कोई कीमत लगाई जा सकती है? क्या 50 अरब या 50 खरब रुपए के अंदर कोई मौलाना मौदूदी पैदा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। एक मौलाना मौदूदी नहीं पैदा किया जा सकता। सारी दुनिया की दौलत अगर लगा दी जाए एक मौलाना मौदूदी पैदा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि मौलाना ने जो किताब लिखी है, बस कीजिए कि अगर वो 2 लाख रुपए में भी मिल रही है तो वो सस्ती है, इसलिए कि वो मौलाना की ज़िंदगी है, वो मौलाना के तजुर्बे पर मुश्तमिल है, उनके मुशाहिदे पर मुश्तमिल है, उनके इल्म पर मुश्तमिल है, उनकी फ़िक्र और तदब्बुर पर मुश्तमिल है। उन्होंने पूरी ज़िंदगी को देखा है, समझा है, तनाज़ुर कायम किया है, उन्होंने कुरान से तवस्सुल किया है, उन्होंने सीरत से तवस्सुल किया है, उन्होंने क्या क्या सोचा है, क्या क्या
नज़रियों की किताब बयान करती है। तो अगर मौलाना मौदूदी की किताब पढ़ा ना हो तो मैं मौलाना मौदूदी से मुलाकात नहीं कर सकता, लेकिन मौलाना मौदूदी की किताब मुझे मौलाना मौदूदी की शख्सियत से बराह रास्त राब्ते का जरिया मौका फराहम करती है, और मैं मौलाना के इल्म से, उनकी बसीरत से, उनके पर्सपेक्टिव से, उनके ख्यालात से, उनकी नज़रियात से मैं आगाह होता हूँ। यह इक़बाल की कुलियात की अगर हम बात करें, यानी इक़बाल ने जो ज़िंदगी बसर की है, जो मुशाहिदात और तजुर्बात उनको हुए हैं, वो 200 या 300 रुपए की कुलियात इक़बाल के अंदर मौजूद है। तो मतलब कुलियात इक़बाल अगर 300 रुपए के बजाय 300 अरब रुपए की हो जाए तो क्या उसकी कोई कीमत हो सकती है? 300 अरब रुपए में सस्ती है। तो किताब हमें सबसे बड़ी चीज़ जो अता करती है ये कि किताब के लिखने वाले को जो तजर्बे और मुशाहिदे हुए हैं, जो इल्म उसने हासिल किया है, जो कुछ उसने सोचा है, समझा है, वो सब का सब उसने किताब में बयान कर दिया है। और सिलायाब है यार के लिए कहकर उसने किताब अपनी शाये कर दी है। अब जो जी में आए, जिसके जी में आए उससे इस्तेफादा करे, जो चाहे उस समुद्र के अंदर कहे। ये किताब का सबसे बड़ा फायदा है कि मैं अपनी ज़िंदगी के मुशाहिदात और तजुर्बात को, अपने इल्म को किताब के जरिए से तौसीह देता हूँ, उसकी गहराई पैदा करता हूँ, उसके अंदर गहराई पैदा करता हूँ। इसके सिवा मुझे ये चीज़ कहीं और से फराहम हो ही नहीं सकती, मुमकिन नहीं। तो किताब पढ़ना मेरे लिए नामुमकिन है। इसी तरह जिस तरह सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मेरे लिए नामुमकिन है। अगर मैं सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मुझे खुदा में फराहम ना हो तो मेरा दम हो जाएगा। या अगर मैं मिसाल दूँ आपको, हम में से कौन सा ऐसा इंसान है कि जो 5 दिन भी खाए बगैर रहने का तसव्वुर कर सकता हो? हम में से कोई भी 5 दिन तो बहुत बड़ी बात है, 3 वक्त भी खाए बगैर रह सकते। इसलिए हम सब जानते हैं, तजर्बे से मुशाहिदे से कि अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारा जिस्म कमज़ोर पड़ जाएगा, और अगर वो मुसलसल कमज़ोर पड़ता रहा तो एक वक्त आएगा कि हमारी मौत का हो जाएगी। इस तरह इंसानी जिस्म को ग़िज़ा की ज़रूरत है, बिल्कुल इसी तरह इंसान की रूह को, उसके नफ्स को, उसके क़ल्ब को, उसके ज़हन को भी ग़िज़ा की ज़रूरत है। लेकिन हमारा अजीब व गरीब चक्कर है, अजीब व गरीब पर्सपेक्टिव हमने ज़िंदगी बारे में बना दिया कि हमें पेट पूजा की, जिस्म की, मतलब जिसको ग़िज़ा फराहम करने की, उसकी तज़ीन और आराइश की तो बड़ी फिक्र है, बड़ी परवाह है। लेकिन जो चीज़ जिस्म से हज़ारों लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी रूह, आपका क़ल्ब, आपका नफ्स, आपका ज़हन, जिसकी वजह से आप हैं, यानी अगर हमारा ज़हन बन जाए, अगर हमारा दिल बन जाए, अगर हमारी रूह बन जाए तो हमारा क्या वजूद होगा? हमारा कोई वजूद नहीं होगा। लेकिन हमें अपने जिस्म को बचाने की परवाह है, इसलिए हम उसके लिए इंतज़ाम करते हैं। लेकिन हमें अपने क़ल्ब को, अपनी रूह को, अपने ज़हन को बचाने की परवाह नहीं है। इसलिए हम किताब से अपना वो ताल्लुक़ नहीं उस्तवार करते कि जो हमारे लिए बिल्कुल नागुज़ीर है, उसी तरह जिस तरह से ऑक्सीजन हमारे लिए नागुज़ीर है या ग़िज़ा हमारे लिए नागुज़ीर है। चुनांचे जिसको ज़िंदा रहना है, जिस्मानी सतह पर नहीं बल्कि ज़हन की सतह पर, दिल की सतह पर, रूह की सतह पर, उसके लिए नागुज़ीर है कि वो किताब के साथ अपना ताल्लुक़ इस्तवार करे, उसको फ़रोग़ दे और उसको मुस्तहकम करे और अपनी ज़िंदगी की तरजीहात में उसको सर-ए-फ़हरिस्त करे। एक चीज़ तो किताब ये करती है। दूसरा काम किताब ये करती है कि गालिब ने बहुत अच्छी बात कही है। गालिब ने कहा है कि देखना तकरीर की लज़्ज़त कि जो उसने कहा मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में। यानी गालिब ने मुकर्रर की, खतीब की खूबी बयान की है। तो ऐसी तकरीर करता है कि उसकी बात सुनकर मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल ये बात तो जो उसने कही ये तो मेरे दिल की बात है। ये जो बात है कि कहने वाले ने, तकरीर करने वाले या लिखने वाले ने वो बात कह दी कि जिसके बारे में आपको ख्याल है कि बिल्कुल आपके दिल की बात उसने कहती है। तो जिस चीज़ को आप दिल की बात कह रहे हैं, ये उसके कहे बगैर आपको दिल की बात महसूस नहीं हो सकती थी। ये उसका कमाल है कि उसने आपके खाबीदा जज्बे को, एक बेचेहरा ख्याल को, एक बेचेहरा तजर्बे को चेहरा दे दिया, एक शनाख्त दे दी, एक तशख़्ख़ुस दे दिया। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंसानों की अजीम अक्सरियत को पूरी ज़िंदगी ये मालूम नहीं हो पाता कि उनके हकीकी ख़यालात क्या हैं, उनके हकीकी जज्बात क्या हैं, उनके हकीकी एहसासात क्या हैं, ज़िंदगी के बारे में उनका क्या तनाज़ुर है, क्या पर्सपेक्टिव है, उनका क्या तस्वुर हयात है, ये उनको नहीं मालूम होगा। जब वो किसी बड़े लिखने वाले को पढ़ते हैं तब उनको मालूम होता है कि अरे उनको ये सोचते हैं, हमारे को ये ख़यालात हैं, हमारे को ये जज्बात हैं, हमारे को ये एहसासात हैं। इसका मतलब ये है कि किताब
बेकार रखता है, उनको एक नाम देता है, उनको एक तशख़्ख़ुस अता करता है और हमें इस काबिल बनाता है कि हम अपने ख़यालात को जाने, उनसे आगाह हों और उनको परवान चढ़ाएं उस तरह जिस तरह के उनको परवान चढ़ाने का हक़ है। जो शख्स किताब पढ़ता है, किताब से ताल्लुक़ इख्तियार करता है, ये नेमत उसको अल्लाह ताला की तरफ से अर्ज़ा हो जाती है, उसके लिए आम बात हो जाती है कि वो अपने ख़यालात, जज़्बात और एहसास से आगाह होने लगता है। ये किताब का एक और बहुत बड़ा कमाल है, इससे पैर उठाने की ज़रूरत का अगर आप तनाज़ुर बनाएं तो ये तनाज़ुर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हम में से अक्सरियत का हाल ये होता है कि इंसानों की अजीम अक्सरियत रेज़ा ख़याली की आदि होती है। रेज़ा ख़याली आप समझते हैं? एक किसी चीज़ के बारे में 2-3 मिनट सोचा और बात खत्म हो गई। 2-3 मिनट में जो चीज़ हमें समझ में आ गई, बस हमने कहा ये फाइनल बात है। यानी एक आम इंसान का जो फोकस होता है, उसकी तवज्जो का जो इर्तिकाज़ होता है, वो बहुत महदूद होता है, चंद सेकंड, चंद मिनट के ऊपर मुश्तमिल होता है, बस इतना होता है। इसकी मैं मिसाल अगर आपको देना चाहूँ कि जिस तरह आप देखते हैं ना दौड़ के मुकाबले में, जैसे 100 मीटर की दौड़ होती है, इंसानों की अजीम अक्सरियत 100 मीटर दौड़ने की आदि होती है, 100 मीटर तक अच्छी तरह दौड़ते हैं। लेकिन अगर आप उनसे कहेंगे कि 200 मीटर दौड़ना है तो हाँफने लगेंगे, उसका स्टैमिना जवाब देने लगेगा। और अगर आप उनसे कहेंगे 500 मीटर दौड़ना है, 800 मीटर दौड़ना है, तो वो आपसे माजर चाहेंगे। और अगर आप उनसे कहते हैं कि भाई मैराथन दौड़नी है, तो वो मतलब घर गिरा देंगे और कहेंगे भाई आप अस्सलाम वालेकुम, ये काम हमारे बस का नहीं है। तो मुताला या किताब जो फजीलत इंसान को अता करती है, उसमें से एक फजीलत ये है कि वो अपने पढ़ने वाले को मैराथन दौड़ने का आदी बना देती है। यानी बहुत देर तक, बहुत दूर तक सोचने का आदी बना देती है। एक ख्याल को बहुत तफसील के साथ बयान करने की सलाहियत अता कर देती है। यानी किताब ये करती है और क्या करती है? किताब जो है वो ख्याल जो आपके जहन में भी है, मेरे जहन में भी है, लेकिन वो बस 1-2 मिनट का ख्याल है, इससे आगे उसकी कोई तफसील ना मेरे जहन में है ना आपके जहन में है। लेकिन जब हम किसी बड़े लिखने वाले को, इक़बाल को पढ़ते हैं, मौलाना मौदूदी को पढ़ते हैं, गालिब को पढ़ते हैं, नवीन को पढ़ते हैं, ये दुनिया के और किसी बड़े आदमी को पढ़ते हैं, तो फिर हमें मालूम होता है कि ये ख्याल जिसको हम चंद सेकंड का ख्याल समझ रहे थे, चंद सेकंड का ख्याल नहीं है, बल्कि ये तो बहुत दूर तक फैला हुआ ख्याल है, इसकी जगह तो बहुत दूर दूर तक फैली हुई है और ये बहुत तनाव दराज है, इसकी शाखें हैं, इसके पत्ते हैं, इसके फल हैं, इसके फूल हैं। तो वो किताब के जरिए से, मुताले के जरिए से मुझे मालूम हो पाता है कि ये ख्याल अपने इजमाल में कैसा होता है और अपनी तफसील में कैसा होता है। अगर किसी को जानना हो कि वो ख्याल को इजमाल में तफसील में जानना चाहे तो वो उसके लिए किताब पढ़ना नामुमकिन है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल तो मौलाना रहमतुल्लाह अलैह का लिटरेचर है। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस ज़माने में अपने काम की इब्तिदा की, वो छोटे लोगों का ज़माना नहीं, उलमा की एक कहकशां थी जो उस वक्त मौजूद थी और कैसे कैसे आलिम दीन उसके अंदर मौजूद थी। लेकिन उन तमाम उलमा के पास वो पर्सपेक्टिव नहीं था जो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के पास था, वो ज़ाविया नज़र नहीं था जो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के पास था, वो इल्म नहीं था, दलाइल और बराहीन का वो तरीक़ा, वो उसलूब नहीं था जो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के पास था, वो ज़बान नहीं थी, वो बयान नहीं था, वो तासीर नहीं थी जो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के पास था। यही तो सबब है कि जिसकी वजह से मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने उलमा की कहकशां के दरमियान अपनी लिए जगह बनाई। यानी एक ऐसा आदमी कि जो ना देवबंद से आ रहा हो, ना बरेली से आ रहा हो, ना उसका ताल्लुक अहले हदीस से हो, ना वो शिया हो, ना वो सुन्नी हो, वो कुछ भी क्लेम ना कर रहा हो और वाले दीन बनकर खड़ा हो गया हो, और ऐसा आलिम दीन कि जिसका हल्का तालीम पहले से मौजूद ही नहीं है। यानी अगर कोई उलमा का हल्का देवबंद से कोई आता था, जैसे मौलाना शफ़ी अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम दीन है, इतने बड़े आलिम दीन है कि उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। 1000 से ज़्यादा किताबें उन्होंने तस्लीम किए हैं, वो खुद यानी मतलब पब्लिशिंग हाउस थे हुए, यानी उनकी तारीफ और तौसीफ में अगर हम कोई निश्चित रखें तो हम उनकी बहुत तारीफ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मौलाना अशरफ अली थानवी भी वो बातें बयान नहीं कर रहे थे जो सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान की। तो मौलाना अशरफ अली थानवी चूँकि मकतबा देवबंद से मुताल्लिक़ है, इसलिए मौलाना अशरफ अली थानवी को पहले से तारीफ का एक बना बनाया हल्का फराहम था, उनको तारीफ पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मौलाना मौदूदी तो किसी से मुताल्लिक़ नहीं थे। अगर मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के पास नया इल्म ना होता
नीयत और अखलास की वो नेमत अता न की होती कि जो कामों के अंदर बरकत पैदा करती है। तो मौलाना मोहम्मदी थोड़ी बन सकते थे, वो तो उलमा की कहनिशान में हो जाते, एक छोटा सा सितारा बनकर रह जाते। लेकिन मौलाना मोहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह एक नया दिल लेकर आए थे, नई दलील लेकर आए थे, नया उसलूब लेकर आए थे। इसलिए उन्होंने अपने पारी पैदा करके दिखाया। कैसे पारी पैदा करके दिखाए? यानी अगर आपसे मौलाना मोहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह के कॉन्ट्रीब्यूशन को देखें तो आपको मालूम होगा कि एक आदमी, एक बड़ा लिखने वाला क्या फर्क पैदा कर सकता है, इसके अंदाजा मौलाना मोहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले देख सकते हैं। मौलाना मोहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें दुनिया की 75 ज़बानों में तर्जुमा हुई हैं। यानी जिस आदमी को अदब का सबसे बड़ा इनाम नोबेल प्राइज मिलता है, उसकी किताबें भी 30-40 ज़बानों में शायद होती हैं। कमर्शियल इंटरेस्ट की बुनियाद पर शायद होती है कि वो नोबेल प्राइज मिल जाता है, वो दुनिया में मशहूर हो जाता है, कोई दुनिया में जाकर उसके पानी पैदा हो जाते हैं, कोई ना कोई बड़ा प्रोफेसर उसको पिक कर लेता है, उसकी किताबें छापता है और बेचता है। लेकिन मौलाना मोहम्मदी को न किसी हुकूमत की कोई सरपरस्ती हासिल थी, न उनको कभी नोबेल प्राइज मिला था। इसके बावजूद उन्होंने वो लिटरेचर प्रोड्यूस किया, वो किताब प्रोड्यूस की, वो इल्म प्रोड्यूस किया जिसने दुनिया की 75 ज़बानों में अपने आप को ट्रांसलेट करवाया। और मुस्लिम दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं हो सकता, कोई माशरा, कोई समाज ऐसा नहीं हो सकता जो मौलाना के इल्मी एहसान का इनकार करे कि एक मिनट मौलाना मोहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ नहीं सीखा। तो एक आदमी जब अपना इल्म लेकर आ जाता है हमारे दरमियान और अपनी दलील लेकर आ जाता है और अपना बुरहान लेकर आ जाता है, तो फिर वो इतना बड़ा फर्क आलमी सतह के ऊपर पैदा करता है कि एक आदमी की कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, एक आदमी की इल्म की बात कर रहा हूँ। यानी एक गजाली है, एक मौलाना मोहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह। तो किताब का एक फ़ायदा ये है कि वो दुनिया को इस तरह तब्दील करती है, दुनिया में इस तरह से इख्तिलाफ बर्पा करती है। और किताब से हमें वो चीज़ फराहम होती है या मुताले से हमें वो चीज़ फराहम होती है जिसको उर्दू आम में हम ज़बान कहते हैं, जिसका इल्म हमारे यहाँ घटते घटते महफूज होते होते जिस सतह तक आ गया है कि पहले हम कहा करते थे कि भाई एमए हमारे निज़ाम तालीम का ये हाल हो गया है, एमए की सतह का तालिब इल्म अंग्रेजी में एक अच्छी दरख्वास्त नहीं लिख सकता। तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई एमए की सतह के तालिब इल्म अंग्रेजी में दरख्वास्त नहीं लिख सकता तो इसमें कोई अफसोस की और मलाल की बात नहीं है, इसलिए कि अंग्रेजी हमारी कोई मादरी ज़बान थोड़ी है। अंग्रेजी तो बाहर से आई है और अभी तक हमारे लिए अजनबी ही है, मतलब उससे हमारा ताल्लुक बहुत मुस्तहकम होना चाहिए। अगर गुफ्तगू का मौजूद है अंग्रेजी के खिलाफ, उससे नफरत करना कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए मुसलमान किसी भी ज़बान से नफरत नहीं करते, हम तमाम दुनिया की ज़बानों को अपनी ज़बान समझते हैं। इसलिए कुरान ने कहा है कि ज़बानें इनका इख्तिलाफ है, ये खुदा की निशानियों में से एक निशानी है। लेकिन मैं बात कह रहा हूँ आपसे, अफसोसनाक बात यह है कि अब एमए की सतह के तालिब इल्म हमारे अपनी मादरी ज़बान में 15 सतर का एक मजबूत पैराग्राफ नहीं लिख सकते। मैं मुशाहिदे और तजर्बे की रोशनी में बात आपसे कर रहा हूँ, इसको आप ख्याल आ रही ना समझिएगा। एमए की सतह के तालिब इल्म 15 सतर का एक मजबूत पैराग्राफ नहीं लिख सकते। उसमें ज़बान की अगलात होती हैं, बयान की अगलात होती हैं, इमला की अगलात होती हैं, तस्कीर और तानीस की अगलात होती हैं। एक जुमला दूसरे जुमले से मजबूत नहीं होता, कहना कुछ चाहा होता है, उसने कहा कुछ और होता है। एक 15 सतर के पैराग्राफ में इतनी खामियां निकल आती हैं अचानक। ये जनरल बात कर रहा हूँ, 80-90% तालिब इल्मों का ये हाल है। और ये सूरत हाल इस नौबत को पहुँची इसलिए है कि हमारी माशरत के अंदर, हमारे पूरे समाज के अंदर पढ़ने का कोई माहौल नहीं है। यानी मैं बच्चों के रिसाले में काम किया करता था, 30-3.5 साल मैंने काम किया। वहाँ बच्चों के बहुत अजीब और गरीब खुद आते थे, उसमें जो सबसे ज़्यादा अजीब खत मुझे महसूस होते थे, हमने एक आज कहते थे बच्चे कि भाई वो मेरे जो अब्बू हैं, मेरी जो अम्मी हैं, मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं और मेरा बड़ा ख्याल रखती हैं, बड़े अच्छे स्कूल में मैं पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लिबास मैं पहनता हूँ, बहुत अच्छी होता मुझे खाने को मिलती है। लेकिन आप मेरे अपने अब्बू को समझाएं खुदा के लिए कि ये हमें बच्चों का वो रिसाला है, आम की चोली खरीदते नहीं, हमें आम की चोली नहीं खरीदने देते, इसलिए कि वो 5 रुपये का या 10 रुपये का है। या वो समझते हैं कि बच्चा रिसाला पढ़ने से खराब हो जाएगा। नहीं, वो गरीब बात है कि बच्चा रिसाला पढ़ने से खराब हो जाएगा, बाकी किसी चीज़ से खराब नहीं होगा, रिसाला पढ़ने से खराब हो जाएगा। तो ये हमारा मतलब बच्चा कहाँ से सीखता है ज़बान? अपने घर से, अपने स्कूल से, अपने कॉलेज से, अपनी यूनिवर्सिटी से। लेकिन ना हम अपने घर में बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं, ना अपने स्कूल में कुछ पढ़ा रहे हैं, ना अपनी यूनिवर्सिटी में कुछ पढ़ा रहे हैं, ना अपनी यहाँ तक कि अपनी तहरीक के अंदर भी कुछ नहीं पढ़ा है। यानी मुझे याद है कि जब हम जमीयत में थे
और ये मैं बहुत पुरानी बात आपसे नहीं बता रहा हूँ, तजुर्बे के अंदर के बारे में, उस जमाने में भी जो पढ़ने का जो रुझान था और जो सतह थी, आज जो देखो तो उसमें बहुत ज़्यादा नुमाया फर्क है, बहुत ज़्यादा नुमाया कमी है। और हमारी ज़बान सुकड़ती सिमटती हुई सतह पर आ गई है कि अक्सर लोगों की वोकैबुलरी यानी ज़ख़ीरा अल्फाज यानी लुग़त 800 से 1000 अल्फाज पर मुश्तमिल होती है। यानी उर्दू की लुग़त 2 लाख अल्फाज पर मुश्तमिल है, लेकिन आम अफराद की लुग़त, आम अफराद का ज़ख़ीरा अल्फाज 800 से 1000 अल्फाज पर मुश्तमिल है। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि यूरोप में और अमेरिका में ऐसे चिंपैंजीज़ मौजूद हैं कि जो 800 से 1000 अल्फाज को तस्वीरों की मदद से पहचान लेते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा ज़ख़ीरा अल्फाज चिंपैंजीज़ की सतह पर आ गया है। और कमाल की बात यह है कि हमें इसकी हमें इत्तला नहीं, किसी अखबार के अंदर ये खबर नहीं छपी है। 50-60 साल हो गए किसी अखबार में मैंने जब हमने सुनी, किसी रेडियो किसी टीवी चैनल पर मैंने खबर नहीं सुनी, कहीं इस पर मैंने मुज़ाकरा होते हुए नहीं देखा, कहीं इस पर डिस्कशन होते हुए देखा कि हमारा ज़ख़ीरा अल्फाज सुकड़ कर सिमट कर 800 से 1000 अल्फाज में मुश्तमिल हो गया है। 800 से 1000 अल्फाज में क्या कर सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं, कितनी बात कर सकते हैं, कितनी गहरी बात कर सकते हैं, कितनी दिलावेज बात कर सकते हैं, किसी कितनी तासीर रखने वाली बात कर सकते हैं। तो ज़ख़ीरा अल्फाज को बढ़ाने का और ज़बान के सांचे को बेहतर बनाने का जो वाहिद तरीका मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ मुताला है। सिर्फ अखबार का मुताला नहीं, यानी जो कोई कुछ नहीं पढ़ता उसको अखबार पढ़ना चाहिए, तो कम अज़ कम है, मिनिमम है। लेकिन जो अखबार पढ़ने लगे उसको ये बताने की ज़रूरत है कि अखबार पढ़ना तुम्हारी ज़हनी सेहत के लिए, तुम्हारी अखलाकी सेहत के लिए, तुम्हारी लसानी सेहत के लिए मुज़र है, ज़हर है। जो आदमी सिर्फ अखबार पढ़ता है, अखबार इंसान को अहमक बना देता है। जो आदमी सिर्फ अखबार पढ़ता रहता है वो अहमक बनकर रह जाता है, इसलिए कि अखबार की जो लुग़त है वो 800 से 1000 अल्फाज पर मुश्तमिल है, इससे ज़्यादा उसकी लुग़त होती नहीं है। यानी हमारे जो लिखने वाले हैं वो 800 से 1000 अल्फाज के दरमियान लिख रहे हैं। खबरें जो है वो 800 से 1000 अल्फाज के दरमियान प्रोड्यूस हो रही है रोज़ाना। और टेलीविजन ने तो और कमाल कर दिया, टेलीविजन की लुग़त तो इससे भी कम हो गई। तो टेलीविजन की लुग़त, अगर अखबार की लुग़त 1000 अल्फाज है तो टीवी की लुग़त तो 500 अल्फाज पर मुश्तमिल हो गई। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी लसानी मौत वाक़ई न हो, यानी मतलब लसानी मौत का मतलब है जिसकी मादरी ज़बान उर्दू है उसको उर्दू नहीं आती है, जिसकी मादरी ज़बान पंजाबी है उसको पंजाबी नहीं आती, जिसकी मादरी ज़बान पश्तो या सिंधी है उसको पश्तो और सिंधी नहीं आती। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इसका टेस्ट ये है कि उर्दू उसको आती है कि जो अपनी ज़बान के बेहतरीन शोरा को पढ़ सके और समझ सके। यानी मसलन इकबाल को पढ़ सके, गालिब को पढ़ सके, मीर को पढ़ सके और समझ सके। या सिंधी उसकी बेहतर होगी जो शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ सके, या पंजाबी उसकी बेहतर होगी जो बुल्ले शाह को, वाली शाह को पढ़ सके। तो समझना तो बहुत दूर की बात है। अब हमारे दरमियान ये सूरत हाल है कि हमारे माशरे की अजीब अक्सरियत इन शायरों के शेरों को सही तरह से पढ़ भी नहीं सकती है। समझना तो बहुत ही दूर की बात है, मतलब वो उनके लिए अजनबी है, ज़बान अजनबी है, उनका बयान अजनबी है, उनकी तजरियात, उनके इस्तारे। और ये हर घर का मसला है, ये बस समझिएगा कि किसी खास घर की मैं बात कर रहा हूँ, हर घर का मसला है। एक लसानी मौत वाक़ई हो रही है आपकी सोसाइटी में बहुत खामोशी के साथ, और मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह अजनबी बनते चले जा रहे हैं, और उनका इल्म हमारी दस्तरस से निकलता चला जा रहा है, और हमारे लिए फरसुदा आस्कारी रफ्ता होते चले जा रहे हैं। मतलब उनकी नाहलियत की वजह से नहीं, हमारी नाहलियत की वजह से। हमारी नाहलियत बढ़ रही है तो हम उनकी अहलियत से इस्तेमाल लेके काबिल नहीं रह रहे हैं, ये है मसला। तो इसका कोई तरीका और नहीं है कि हम अपने बच्चों को अपने घर में पढ़ाएं, अपने स्कूलों में पढ़ाएं, अपने कॉलेज में पढ़ाएं, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाएं, अपनी तहरीक में पढ़ाएं और जबरन पढ़वाएं। यानी मतलब ये मोहब्बत से नहीं, ये तो जबरन कराने के काम है। डंडा लेकर बैठ कर अगर कराना पड़ेगा ये काम, ये भाई तुम्हें बंद कर देंगे हम यहाँ इस कमरे के अंदर तुम्हें बंद कर दिया है, 3 दिन तक तुम्हें खाना ही मिलेगा जब तक तुम ये किताब खत्म नहीं कर लोगे, तुम्हें इस कमरे से नहीं निकाला जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सीरियस बात कर रहा हूँ, इसको इसके तैयार होना चाहिए। ये इतनी सीरियस बात है कि अगर ये करना पड़े कि 50 लोग या 60 लोग यहाँ बैठे हैं, जनाब आप इस बच्चे से निकलेंगे जब तक आप मौलाना मौदूदी की किताब नहीं पढ़ लेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस दिन आप मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की
होगी, उस पर जाज़िबियत पैदा हो गई होगी, आपको बोलना आ गया होगा, आपको बात करना आ गया होगा, आपको दलाइल पता चल गया होंगे, आपको बराहीन पता चल गया होंगे, आप 10 लोगों के दरमियान बैठकर बात कर सकेंगे, उस पर आप मिसालें दे सकेंगे, कहीं बहस कर सकेंगे, अपने नुक्ता नज़र को साबित कर सकेंगे, अपने नुक्ता नज़र की इसाबत पर इज़हार कर सकेंगे। क्या ये जब बातें मैंने आपसे अभी अर्ज़ की, क्या ये मामूली बातें हैं? ये एक किताब पढ़ने से कह रहा हूँ, एक किताब को भी मालूम होगी, बस की जब बात आपने पढ़ी, एक किताब पढ़ लेने से इतना फर्क काफ़ी हो जाएगा। तो अगर आप मौलाना मौदूदी की 25 किताबें या 30 किताबें पढ़ लें या 50 किताबें पढ़ लें, तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि इससे आपकी ज़िंदगी में क्या इनकलाब अजीम रुतबा होने वाला होगा। और आप देखते ही देखते हो, मतलब अगर आप ये काम 1 साल के अंदर करके फर्ज कीजिए कि आपने 1 साल के अंदर मौलाना की 30 किताबें पढ़ ली, 1 साल में आप अगर इस वक्त 0 पर खड़े हुए होंगे, 1 साल के बाद आप 100 पॉइंट्स के इंडेक्स के ऊपर खड़े हुए आदमी होंगे। तो ये इतना बड़ा तगय्युर पैदा करती है किताब आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में। लेकिन हमारी मुश्किल ये है, जैसा कि मैंने इब्तिदा में आपसे अर्ज़ किया था, कि हम लोग किताब की अहमियत को उस तरह से ना देखते हैं, ना समझते हैं, और हमारी तरजीहात की अगर कोई जायज़ में जाए तो किताब उसमें सबसे अव्वल तो होगी ही नहीं, और अगर होगी तो कहीं 30, 40, 50 तरजीहात की फहरिस्त में कहीं 49वें नंबर पर और 30वें नंबर पर इस तरह की होगी। और इतनी निचली सतह पर जो चीज़ों का हाल होता है वही हमारा किताब से ताल्लुक़ का होगा। तो गुजारिश मेरी आपसे ये है कि एक मुसलमान की हैसियत से भी हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम अपने मुताल्लिक़ को वसअत दें, उसको गहराई में रखें, किताब से अपने ताल्लुक़ को इस्तवार करें। अपनी तहज़ीब से मोहब्बत का तकाज़ा भी ये है कि हमारी किताब और किताब की तहज़ीब है, किताब पर खड़ी हुई किताब तहज़ीब है, कुरान के ऊपर खड़ी हुई किताब तहज़ीब है। जो आदमी आम किताब को नहीं समझता वो कुरान को क्या समझेगा? मतलब खुदा जब कल आपसे मुझसे पूछने वाला पूछेगा तो जरूर हो कि तुम्हें हमने भेजा था और तुम्हें मसाइल दे दिए। ये तो नहीं कह सकता हमने से कोई कि मेरे पास तो पैसे नहीं थे, इसलिए कि 5,000 रुपये तो तुम्हें आप खरीद लेते हैं ना, और 10,000 रुपये के कपड़े तो हम बना लेते हैं ना, और 2 करोड़ रुपए का घर खरीद लेते हैं। तो ये तो हम कह नहीं सकेंगे कि साहब पैसे तो हमारे पास नहीं थे। वक्त की आप बात करते बाद लोग कहते हैं वक्त हमारे पास नहीं था, साहब क्या करें। मैंने आज तक कोई इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा कि जिसने अपना एक दिन का खाना मिस किया हो। यानी कोई आदमी है आपने जैसा जिसने शऊरी तौर पर जानबूझकर एक दिन खाना ना खाया हो? मैं रोजे की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई है आपने ऐसा जिसने एक दिन खाना ना खाया हो? मुमकिन ही नहीं। इसलिए कि आपको पता है अच्छी तरह कि आप एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो आप पर नकाहत तारी हो जाएगी, आप कमजोर हो जाएंगे, आपका एनर्जी लेवल ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन हम 30-30 साल, 40-40 साल, 50-50 साल किताब पढ़े बगैर जिंदा रहते हैं। कितनी अजीब गरीब बात है, कितनी हैरतअंगेज बात है, कितनी अफसोसनाक और कितनी शर्मनाक बात है कि हमें ख्याल नहीं आता कि यार 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, हमने कोई किताब नहीं पढ़ी है, 2 साल से हमने किताब की जरूरत नहीं देखी है, चलो जरूरत ही देखें, बस हम हाथ लगा के इसी से बरकत हासिल हो जाएगा। मतलब इनमें से किसी को याद भी नहीं रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक, शर्मनाक और बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है। इसलिए दुनिया में हमारा दीन बताता है